everyone, we are discussing improvement in food resources in which today we will talk about the cattle farming. So let's get started. The topic is cattle farming. The rearing, caring, breeding and disease control of cattle for different purposes is called cattle farming. In our country, mostly cattle farming is done for milk and draught labor. So the common cattle species found in our country are Bos indicus, that represent cow. However, Bos bovalis represents buffaloes. Now let us talk about milk production. The milk production is somehow related with the lactation period, and this lactation period is the time or period of milk production after the birth of calf. By increasing the lactation period, we can increase the production of milk also. Some of the example of foreign breeds or species that have longer lactation period are Jersey or brown Swiss. So, example of foreign breeds or species having longer lactation period are Jersey and brown Swiss. And the most common Indian breeds are example of Indian species are Red Sindhi and Sahiwal, who are disease resistant. So these are disease resistant. If we crossbreed these two varieties, that means the foreign variety that have longer lactation period and Indian variety that are disease resistant. If we crossbreed these varieties, we get a new product or variety. So these new products must have the desirable characteristics, like this product must have longer lactation period, as well as these are disease resistant. In our country, this cattle farming is basically done for milk and draught animal. So, purpose of cattle farming is for milk production
and other purpose is for used as draught animals. Draught labor. This draught labor we can also call this draught labor as draft animal. So basically this draft labor is used to carry goods, or it is used to work in the agricultural field. So this draught animal is used to carry goods or these are used to work in agricultural field. Example is tilling, carting, ploughing, etc. And the example of draught animal are ox, bull, camel, donkey, etc. And those animals that produces milk are called dairy animals or milch animals. So milk producing animals are called milch or dairy animals. Their examples are cow, buffalo, goat, etc. So this is about cattle farming. Let us discuss some of the caring rules for cattle farming, as these cattle are important for us. So first one is, this cattle needs proper cleaning. So proper cleaning is sanitation and using of disinfectants at regular intervals are important. Proper cleaning, sanitation, and sanitization is important. Ventilated shelter should be required for cattle to protect them from heat. We need ventilated shelters. Next is, they need protein rich and balanced diet. Protein and balanced diet should be provided. Availability of veterinary doctor. As these cattle suffer from different type of diseases, so there must be availability of veterinary doctors in the farm. The next caring rules contains vaccination.
So vaccination should be given against bacterial and viral infections. Cattle farming, caring और ब्रीडिंग है, डिसीज़ कंट्रोल है एनिमल्स का, कैटल्स का, जिससे कि हमें दूध मिलता है, लेबर पर्पस के यूज़ से भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इंडिया में इसकी कुछ खास कैटल की जो स्पीसीज़ हैं वो है बॉस इंडिकस जो कि काऊ के लिए है, बॉस बोबालिस जो है बफेलो के लिए है। ठीक है, कुछ फॉरेन ब्रीड्स और स्पीसीज़ की बात कर लें जिसमें कि लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड है, तो वो कौन सी हैं? जर्सी भी है और ब्राउन स्विस है, जिनका कि लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है। मिल्क प्रोडक्शन की अगर बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है लैक्टेशन पीरियड को बढ़ाकर। ये लैक्टेशन पीरियड क्या है? ये वो पीरियड और समय है जब मिल्क का प्रोडक्शन होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ काफ। काफ के पैदा होने के बाद से मिल्क प्रोडक्शन का जो टाइम है उसे लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, अगर लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा दें तो मिल्क की प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फॉरेन कुछ स्पेसीज़ हैं, जर्सी है, ब्राउन स्विस है, जिनका कि लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है। अगर कुछ इंडियन वैरायटी की बात कर लें तो इंडियन स्पेसीज़ में क्या होगा? रेड सिंधी है और साहिवाल है। ठीक है, इनकी क्या खास बात है? ये डिसीज़ रेसिस्टेंट होते हैं। अगर इन दोनों वैरायटी को अगर क्रॉस ब्रीड करवाते हैं और जो न्यू प्रोडक्ट होता है वो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स के साथ होगा, डैट मीन्स कि न्यू प्रोडक्ट में लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड भी पाया जाएगा और वो डिसीज़ रेसिस्टेंट भी होंगे। ठीक है, तो ये हो गई मिल्क प्रोडक्शन के बाद। अब ज़्यादातर मैंने बताया अभी कि कैटल फार्मिंग का पर्पस जो है मिल्क प्रोडक्शन का होता है और ड्रॉट लेबर के पर्पस से भी इनका इस्तेमाल होता है। तो वैसे एनिमल्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उन्हें मिल्च और डेयरी एनिमल्स कह देते हैं। ठीक है, जबकि जो लेबर का काम करते हैं उन्हें ड्रॉट या ड्राफ्ट एनिमल भी कहते हैं। ठीक है, तो ड्राफ्ट एनिमल की क्या खास बात है? वो कैरी करते हैं गुड्स को, भारी सामान कैरी करते हैं, या फिर उन्हें एग्रीकल्चरल फील्ड में भी उनसे काम लिया जाता है, टिलिंग का, काटिंग का, प्लविंग का, मिक्सिंग और लेवलिंग ऑफ सॉइल करते हैं। उन सारे कामों के लिए किसका यूज़ करते हैं? ड्रॉट एनिमल के। उनके एग्जाम्पल ऑक्स हैं बुल, कैमल, डोंकी एट्सेट्रा। अब चूँकि कैटल फार्मिंग हम सभी के लिए ज़रूरी है इसलिए इनका प्रॉपर केयर लेना ज़रूरी है, तो कुछ केयरिंग रूल्स देख लेते हैं। प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, कैटल्स की साफ़ सफाई होनी चाहिए, दांतों को, बॉडी पार्ट सब साफ करना पड़ता है, प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान रखना है, सैनिटाइजेशन करना है रेगुलर इंटरवल पे, सो डैट कि वहाँ कोई बदबू ना हो, गंदगी ना हो। जैसा कि हमें पता है कि गंदगी में ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ज़्यादा पनपते हैं, मॉस्किटोज़, वायरस, सब सारी चीज़ें जो हैं जो हमें बीमारी कॉज करते हैं वो गंदगी में ही पनपते हैं। वेंटिलेटेड शेल्टर होनी चाहिए कैटल्स के लिए ताकि इन्हें धूप से, अधिक ठंड से और बारिश से बचाया जा सके। प्रोटीन एंड बैलेंस डाइट होनी चाहिए, इनकी डाइट जो है प्रोटीन से भरी होनी चाहिए और बैलेंस्ड भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मिल्क देते हैं। प्रोटीन एंड बैलेंस डाइट शुड बी प्रोवाइडेड, अवेलेबिलिटी ऑफ वेटरिनरी डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर्स मौजूद होने चाहिए क्योंकि कैटल भी सफ़र करते हैं बहुत सारी बीमारियों से। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की व्यवस्था होनी चाहिए अगेंस्ट बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। वैक्सीनेशन प्रोग्राम फार्म में प्रेजेंट रहना चाहिए ताकि फ्यूचर में इन जानवरों को बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो ना सके। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैटल फार्मिंग। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट पोल्ट्री फार्मिंग। सी यू देन, गुड बाय, थैंक यू।